To introduce the speaker today. Thank you, sir. So I think today's 47th event, 48th event in our department, and so all we are privileged to be part of this department. And good afternoon to all of you here this afternoon. And today we have a very dynamic and efficient officer from Government of India, Patent Office, Dr. Saida Umar, and she did her MSc from IT College, Lucknow University, I think the part of Lucknow University, and joined the Patent Office at the post of Examiner of Patents and Design, Department of Industrial Promotion and Policy, I think the same department some change. Yes, sir. It's Department of Promotion of Industry and Industrial. DPIIT. Yeah, initially it was DIPT. Initially it was DIPT. And she did her PhD from CDRI, Lucknow, and have published several scientific research papers in the international reviewed journals. With a high impact factor, she has been trained for the fostering innovation and commercialization of intellectual property rights from the Copenhagen Business School, Denmark. And now I welcome you, ma'am. Please give your input so that we can benefit from it. Thank you. Thank you, sir, for the kind words. And I would like to thank the chemistry department for giving an opportunity and being a part of the National Intellectual Property Awareness Mission. National Intellectual Property Awareness Mission was a program that was initiated in the year 2021 by Shri Anurag Jain sir, DPIIT Secretary. It was initiated to promote and create awareness and innovation among the students and researchers all over the country. So during the first year, the target was to achieve the participation of up to 1 million, and which was successfully achieved. Now, the main motto of this program is to create an awareness and to promote innovation so that we can, as a student, as a researcher, we are more eligible to be as an employer. Like you can give job rather than seeking job, because each and everyone is capable of developing intellectual property by itself, by himself or herself. So now you can protect your intellectual property and you can commercialize it so that you are self-dependent. That is Atmanirbhar Bharat. That is the motto of our Honorable Prime Minister. So, going with that, to develop a self-reliant India, the importance is making each and every student, researcher, each and every citizen self-capable and independent. So, this is the main motto of the program. Now, intellectual property right. Intellectual property right is a collection of different types of intellectual property rights that exist. So there are basically 8 types like patent, trademark, industrial design, geographical indications, trade secret, semiconductor, IC, plant variety, copyright. Now I am going to teach each one of them separately. Like patent. Patent is the intellectual property right that is given for a period of 20 years to the applicant, and it is given for an invention that can be a product in India or it can be a process. Trade secret or trademark. Trademark refers to the logo or the name of a brand or a company. For example, if we look at the shoes and the jeans and the clothing of a person, or even when you buy a laptop or a mobile, there is always a trademark on it, that the logo of the company or the brand, by which you can identify the origin of the product. So the trademark is basically the brand name or the brand logo.
Industrial design, we all have heard about Manish Malhotra, Sabsachi. So these are what? These are designers. So their main industry or their main trade is based on the designs of objects. It can be clothing, it can be jewelry. So design basically refers to the external appearance of a product. The internal, what it is made of, is not included in design. Design only refers to the external, how it looks. Geographical indications. Now, geographical indications basically refers to the product. It can be an agricultural product, it can be a textile, it can be a handicraft. That is special because of its origin to a particular geographical area. For example, one of our friends goes to Kashmir. We ask them to bring Kashmiri saffron, Kashmiri kesar. In Lucknow, what is famous? Like chicken curry, Lucknow Zardozi, Lucknow chicken curry. So for Lucknow chicken curry and Zardozi have the GI tag from the government of India because they are special from the place of origin. So these are called as GIs. Now trade secret. You must have all heard of KFC, McDonald's and Pizza Hut, Coca-Cola. They have distinct taste, right? No two products or their goods have the same taste. Dishes have different taste and very unique taste. So trade secret refers to the formula. It can be a process, it can be a know-how, it can be a secret component, an instrument. So whatever helps a particular company to improvise their commercial value. KFC has its own secret formula, and trade secrets are not known to the patent offices as well. It is the responsibility of that particular company to keep that formula secret. So how they keep it secret? Because that particular formula is disclosed only to a limited number of selective people with non-disclosure agreements. Those people have to sign, those employees have to sign non-disclosure agreements with the company so that they do not disclose these kind of confidential secrets or information outside. So that is trade secret for that company. Semiconductors, we all have heard like our laptops, mobiles, they all have chips, microchips in there. So the design, the external layout of that semiconductor can be protected under SICLD type of IPR. Next is plant variety. We all eat Lay's, right? So the potato that is being used in Lay's, that is not a normal potato but a special variety or a hybrid variety. So that kind of variety of plants which are hybrid, which have distinct, which are created for a particular commercial application, that is protected under plant varieties. Then copyright. We all are aware of most of them I think are, most of the people and youngsters nowadays are YouTube content creator. Obviously, most you all view videos on social media. But have you ever noticed that once a video is available on social media, 2 to 3 days after that it is removed and the message appears that due to copyright issues the video has been removed from the site. So that is copyright. Copyright is for literary, dramatic, artistic work. It can be a picture, it can be a painting, it can be a photograph, it can be a computer program, or it can be any kind of a recording, poem, anything. So any literary, dramatic, artistic work, cinematographic film, they all comes under the purview of copyright. So these are all different types of IPRs. So IPR is not something very secret that we don't know of. But it is only that we are not much aware of the kind of IP we are looking at. For example, this is the laptop. And looking at the laptop, the first thing that must have come in your mind was that this laptop is of Apple company. This is an Apple laptop. So this Apple sign, the half-eaten apple or the bitten apple which is there, it signifies the Apple company logo. Therefore, this is the trademark of Apple company. Now, the LED screen is a technology. The liquid display that they have, it is a technology and an invention that is protected under patent. Then the body of the laptop, how it looks like, because we as consumers, we are always aware, we also always want the product which looks cool, which looks different. So the design of a product is very important. The external appearance of a product is very important. For example, if the product has a very high and very high-end technology, yet it doesn't look cool to you, you will not buy it, obviously, because the appearance is not good to you. So appearance is very important. So here the body of the laptop signifies the design IPR. Then user manual.
which we get when every product we buy, it can be protected under copyright for that company. Layout of the integrated circuit, the microchip that is present inside the laptop is SICL protection. So a single product has multiple IPRs associated with it. And always remember that multinational companies, whenever they launch a product, they file for an IPR many years before. For example, you are looking at 5G technology. It is still not very much launched on a wide scale in India, but 4 to 5 years back we had the patent application for 5G. So as soon as a company develops a new product which they find very important potentially, so they file the IP for that. They file for an IPR, they file for a patent, then they work on it, they improvise it, they complete their study, develop it into a product and launch it in the market, but not before filing or before protecting. So IPR starts with your brain. All the kind of IPRs which I have discussed till now, 8 types of these, all these IPRs, they have first originated in someone's brain. They have devised an idea, then they have applied their resources, applied the labor, and then finally converted it into something tangible, something that can be seen. So the idea is intangible. You cannot see, you cannot look, you can hold an idea. But when it is converted into something, a product that is tangible, then you can go for the protection. So always remember, whenever you develop something new, it might be a compound, it can be a poem, it can be a song, it can be a movie script, anything. It can be a new technology. Always protect that first before releasing it in the market, so that once the product is in the market, no one else can use that without your permission. Only you should have the right to explore it commercially or in any way you want. So how can we use a product? For example, once you have made a certain, you have created any product, you can use it for your own purpose, you can use it as for your personal use, or you can license it to someone. Licensing means you are selling it. You are transferring your right to a party, to a company, in exchange of certain financial benefit. No matter what are the terms of the agreement, you can have an agreement with the company and you can sell or transfer the product to that company, and then that company can commercialize it. Or you can assign it or you can license it. So assigning is transferring, and licensing means you are getting in an agreement with a third party so that they can use your product as per your own terms and conditions. But you are not transferring the rights. In license, you are allowing a third party to use your product at a certain terms and conditions. But in assignment, you are transferring your product as a whole to the third party. Then franchise. See, multinational companies, for example, like Ford, Mercedes, these all companies are not Indian. McDonald's, KFC, they are not Indian. So in order to expand their market in Indian territory, they have to hire companies so that they can handle their business in India. So that is called as franchisee. KFC has a franchisee in India. So they train these employees, they give them the secret formula, they have certain secret agreements with them, non-disclosure agreements, and then they allow them to use their brand name in India and to grow their business. So what happens? For KFC, they get an Indian market. In India, they are getting the brand KFC to earn money. So that is called as franchise. Then merchandise. Disney, for example, Disney characters were all created by in the mind of someone. They created a Disney character and now it is popular. It can be made into bags, it can be, you can say a bag, hairband, kid products. So a number of products are there in which Mickey Mouse has printed on it. So those are called as franchisee. They have franchisee outlets in all over the world. So these are the ways in which one can earn. So as I told, first of all, when you have created someone, you always try that whenever that product is in the market, your name must be there. Okay, so that is pride. You can use it whenever you are you are applying for a post. So that is in the CV. So these are the two applications. For example, if you have filed a patent application, you will write that patent application in your CV, so that whenever you are going for an interview, that the employer will be impressed.
Then you can also have it commercialized, so that is a commercial benefit. Because, for example, if you are working on an idea, similarly some other person might also be working on the same idea. So the early you file for a IPR, that means later on if someone comes, then you can claim that that idea was first protected by you. That product was first protected by you. So it is a competitive advantage for the company. आपने कुछ बनाया, सामने वाला आपकी कॉम्पिटिटिव कंपनी भी उसी पे काम कर रही है, आपने उसको जल्दी बना के प्रोटेक्ट कर लिया या पेटेंट ले लिया। इसका मतलब सामने वाली कंपनी का प्रोडक्ट आप एक तरह से मार्केट में उतना कमर्शलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पहले ही उस प्रोडक्ट पे अपना राइट ले लिया। सो दैट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। पेटेंट is an exclusive right that is given by Government of India to the applicant for a period of 20 years. आपने अगर कोई इन्वेंशन बनाया है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव क्रिएटेड समथिंग, देन इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू विल फाइल फॉर अ पेटेंट, देन यू विल बिकम द एप्लीकेंट। बट इन सम केसेस, फॉर एग्जाम्पल आपने इन्वेंशन बनाया और लखनऊ यूनिवर्सिटी आपकी एप्लीकेशन फाइल कर रही है, दैट मीन्स द एप्लीकेंट बिकम्स द यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ एंड यू विल बी द इन्वेंटर। सो द राइट इज ऑलवेज गिवन टू द एप्लीकेंट। जिसने अप्लाई किया है उसी के पास पेटेंट राइट होगा। एंड द कंडीशन फॉर इट इज, जो भी पेटेंट एप्लीकेशन आप फाइल कर रहे हैं, आपको पूरा कंप्लीट डिस्क्लोजर देना होगा। आपकी इन्वेंशन कैसे काम करती है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, एग्जांपल्स क्या हैं। सो द कंप्लीट डिस्क्लोजर हैज टू बी गिवन इन द पेटेंट एप्लीकेशन। पेटेंट इज ऑलवेज टेरिटोरियल। अगर आपको इंडिया में पेटेंट मिला है, दैट मीन्स आपके पास इंडियन टेरिटरी में ही वो प्रोटेक्शन मिलेगी। देयर इज नथिंग एज ग्लोबल और इंटरनेशनल पेटेंट। There is you cannot have a single patent application and get a patent for in different countries. If you want a US patent, then you have to file a US patent application and go through the process. See, some of the examples over here are some of the scientists which are well known, like Wright brothers, Louis Pasteur, and they are associated with a particular kind of inventions. So how is it that we know of them? It is only because कि जैसे ही उन्होंने अपना कुछ प्रोडक्ट बनाया था, कुछ इन्वेंशन किया था, उन्होंने पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किया, उनको पेटेंट मिला। Otherwise, this time where you can imagine that hundreds of people would have stood up saying that I have developed an aeroplane, I have developed a telephone, but it is not. How? Only because at the time of the invention, those inventors, they protected their product, they went for a patent, they had their patent, and now we remember them because of those patents, because that is the proof. So some of the inventions you can say Tata Nano car, penicillin, Jaipur food. Then can be a simple inventions like this umbrella, which is a kind of umbrella hat, जो आप देख सकते हो कि बहुत सिंपल है, बट ये है कि उसका एप्लीकेशन है, तो कमर्शियल मार्केट हो सकता है इस तरह के इन्वेंशन का। पेपर क्लिप्स अभी हम लोगों को बहुत कॉमन लगता है, बट स्टिल hundreds of years of applications are still coming on for paper clips. Then drone, projector mobile phone or projector watch. Then there is a card reader. So invention can be very much simple, or it can be a very complicated, technologically advanced product. But in either way, if it has a commercial benefit, one should always protect it. Then only some other party would be interested. अगर आपके पास कोई आइडिया, आपने प्रोडक्ट बनाया है और आपको उसको कमर्शलाइज करना है, किसी कंपनी को बेचना है, तो कंपनी उसे तभी लेगी जब आपके पास ये प्रूफ होगा कि ये आइडिया आपका ही है, और वो प्रूफ होगा बिकॉज ऑफ दैट IPR। आपके पास पेटेंट है उसका, इसलिए आपके पास प्रूफ है कि ये मेरा ही है। डिजाइन इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस। पेटेंट जैसे 20 साल के लिए होता है, डिजाइन इज फॉर इनिशियली गिवन फॉर 10 years, और आप उसको 5 साल के लिए और एक्सटेंड करा सकते हैं। सो 10 + 5। नाउ डिजाइन कैन बी फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल ये एक सिंगल अपने आप में कंप्लीट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इनका डिजाइन होगा। और अगर कोई सेट है, जैसे सोफा सेट है, ज्वेलरी है, तो इनका एक सेट है, तो ये पूरा सेट डिजाइन में कवर होगा एज अ सेट फॉर डिजाइन प्रोटेक्शन। ट्रेडमार्क, यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर आर मल्टीपल लोगोज ऑफ डिफरेंट कंपनीज लाइक बाटा, बिस्लरी, याहू, हमदर्द। सो दीज आर द ट्रेडमार्क्स ऑफ दीज कंपनीज। जैसे ISI होता है, ISI वी कैन लुक एट अ प्रोडक्ट, इसके ऊपर ISI का मार्क है, इसका मतलब ये सर्टिफाइड है, तो वो सर्टिफिकेशन मार्क्स होते हैं। तो इसी तरीके के मार्क्स आपको डिफरेंट ब्रांड्स के और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सबका एक एम्बलम है, सबका एक लोगो है, दैट इज द ट्रेडमार्क।
नाउ ट्रेडमार्क फाइलिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज अगर आप अपना कंपनी का ब्रांड एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, ब्रांड तभी एस्टैब्लिश होगा जब वो पर्टिकुलर ट्रेडमार्क आप कहीं रजिस्टर करेंगे और आपका प्रोडक्ट उस ट्रेडमार्क से एसोसिएटेड होगा. सो ट्रेडमार्क अगर आप कभी भी जा रहे हैं, इट शुड बी वेरी यूनिक, किसी से सिमिलर नहीं होना चाहिए, इट शुड बी यूनिक. देन कॉपीराइट. कॉपीराइट रिफर्स टू ड्रामेटिक वर्क. कोई पेंटिंग हो सकता है, पोएम हो सकता है, स्टोरी राइट, पिक्चर, मूवी स्क्रिप्ट हो सकता है. देन दे कैन बी अ साउंड रिकॉर्डिंग, सिनेमाटोग्राफिक फिल्म, इवन अ सॉन्ग, इवन कंप्यूटर प्रोग्राम comes under the purview of copyright. So copyright is a bundle of right. Copyright is automatic. For example, आपने कोई कहानी लिखी, आपने कोई पोएम लिखा, तो जैसे ही आपने उसको क्रिएट किया, आपका कॉपीराइट उस पर ऑटोमेटिकली हो जाता है. बट द थिंग इज, आपको अगर कल कोई और उसको आपकी परमिशन के बिना यूज कर रहा है, देन यू शुड हैव अ प्रूफ फॉर दैट आपने उसको पहले बनाया है. जैसे आपने YouTube पे अपलोड कर दिया, तो जहां आपने अपलोड किया दैट मीन्स आपका एक प्रूफ हो गया कि ये YouTube पे इस दिन मैंने ये अपलोड किया. उसी तरह से आप कॉपीराइट फाइल कर सकते हैं. कॉपीराइट फाइल करके मान लीजिए आपने कोई स्टोरी, मूवी की स्क्रिप्ट बनाई, मूवी की स्क्रिप्ट आप पहले उसको प्रोटेक्ट कराते हैं कॉपीराइट में, उसके बाद आप प्रोड्यूसर को अप्रोच करते हैं उस मूवी स्क्रिप्ट को सेल करने के लिए या उसको मूवी बनाने के लिए. सो दैट इज हेल्पफुल बिकॉज आप स्क्रिप्ट तो अपलोड नहीं कर सकते यूट्यूब पे, बट आपको उसको प्रोटेक्ट तो करना है कि कोई और उसको ना यूज कर ले विदाउट योर परमिशन. सो देयर कम्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉपीराइट. कॉपीराइट इज अ बंडल ऑफ राइट. मान लीजिए आपने कोई कहानी लिखी, स्टोरी, यू हैव रिटन अ सॉन्ग, यू हैव रिटन अ मूवी स्क्रिप्ट, यू हैव सोल्ड इट टू अ प्रोड्यूसर एंड विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी द स्टोरी इज सोल्ड. बट देन अगेन यू हैव ट्रांसफर्ड योर इकोनॉमिक राइट्स, बट the moral rights are still there. That means that producer cannot alter or distort your story, first thing. And any time when a movie is being made, then you will be considered, you will be acknowledged as the author. So the credit will always be with you. So copyright is a bundle of rights having economic as well as the moral rights. The term of protection, like I said, patent is for 20 years, design is for 10 years. Patent is not extendable, but design can be extended for 5 years more, so it can be 10 plus 5. Similarly, copyright, for a simple, for example, if a simple movie story is being written, then it will be for a period of the lifetime of the author. जब तक आप जिंदा रहेंगे आपका copyright है उस पे, और plus 60 years even after you dead. And then cinematographic film, broadcast and production, they also extend up to many years. Integrated circuit layout design. The integrated circuit layout design registration is done in the Delhi Patent Office. There are 4 patent offices in the country: Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai, and still we are looking to expand the patent office in the country. So there might be more offices around the corner. So there are basically 4 patent offices. For Lucknow, the jurisdiction is Delhi Patent Office. If you have to file an offline application, then you have to come at Delhi Patent Office. But there is no need for that because we have online filing also. Sitting at your home all over India, anywhere from anywhere you can file an online application for IPR. Design registration or integrated circuit layout design registration is valid for a period of 10 years. Geographical indications, as I told, these are the cultural heritage of a country, like Darjeeling tea, Rajasthani Makrana marble. Then Delhi has a Basmati tag. Apart from Delhi, many Indian states have Basmati tags with it. Then Ratnami save of Madhya Pradesh, Kanchipuram sari. So they can be a agricultural product, it can be a handmade, man-made product, it can be a textile, it can be a handicraft. So there are few more examples, like for Bihar, Shahi Lychee of Bihar is very famous, Tejpatta of Uttarakhand. Then there is a list of GIs that is given, that has been granted to GI tags to Uttar Pradesh. Uttar Pradesh is extremely rich in cultural heritage. So Lucknow chicken curry and Lucknow zardozi are the 2 GI tags that has been given by the government of India to Lucknow. So what is the importance of GI? For example, कोई चीज़ स्पेशल हो जाती है, जब आप किसी को GI टैग मिलता है तो वो प्रोडक्ट स्पेशल हो जाता है, उसका मार्केट वैल्यू बढ़ जाता है. जैसे अगर आप मान लीजिए
आप चिकन का कुर्तारी कहीं भी हो रही है, बट अगर लखनऊ चिकन का कुर्ता है तो वो नॉर्मल चिकन कुर्ते से कहीं का भी होगा, वो महंगा होगा, वो कॉस्टली होगा. तो those people who are working in that field, they get a moral boost, they get an economic support, because globally the GI products are very much appreciated. They are bought at a very much higher price than compared to the normal product. So it is a boost. And GI is never given to an individual. For any kind of IPR, a single individual can file, but a GI is never given to a particular individual because it is a public property. It is always given to an association of people who are working in that field. So you have to prove that that particular product is special, and it is special because of a particular geographical area. So a number of requirements have to be satisfied to make something special to get a GI tag. Now, coming on to the main part, how to file a patent application. Now, patent application, first of all, whenever you have developed an idea, mostly you go with problem solution approach. You look in the literature, you find a certain gap, you develop an idea, you work on an idea, you develop a product, you test the product. So, as soon as you find that your product is working, go for the patent application. You will have a sufficient period of time to complete your data or study within a period of 12 months. But as soon as you develop a product, have a model in hand, is it working? If it is working, then file a provisional specification or file a patent application with a provisional. So how can you file it? So patent application, because you are from Lucknow, you can file your application in Delhi Patent Office offline, or there is 10% fee concession if you are filing your application online. So there are certain number of forms that you have to fill. The first is form 1. In form 1, you have to give the detail who is the applicant. For example, if you have developed something and you are filing an application, then you will be the inventor as well as the applicant. But for example, you have developed a product, but your university, your college or your company is filing, then that company, university or college will be the applicant. So there is a column in form 1 where the inventor has to sign to prove that the applicant is your legal representative. यानी आपने applicant को authorize किया है उस invention को file करने के लिए. तो form 1 में sign signature का column होता है जिसमें सारे inventors को sign करना होगा. और ये form 1 आपको submit करना होगा at the time of filing, और या आपके पास 6 महीने हैं उसको डालने का. तो डीड ऑफ असाइनमेंट भी आप सबमिट कर सकते हैं अगर आपके पास कोई एग्रीमेंट है, जिसमें एग्रीमेंट में ये है कि आपने जो भी बनाया है वो इस पर्टिकुलर कंपनी को असाइन करा हुआ है, तो वो एग्रीमेंट भी सबमिट आप 6 महीने के अंदर कर सकते हैं. तो फॉर्म 1 इज द फर्स्ट फॉर्म. इसमें आपको अपनी डिटेल देनी है, अपना एड्रेस देना है, अपना आईडी प्रूफ देना है, एप्लीकेशन का टाइटल क्या है, आपकी इन्वेंशन का टाइटल क्या है वो बताना है, और कुछ डिक्लेरेशंस हैं जो आपको साइन करना होता है, मतलब टिक करना होता है. सो इट इज अ सिंपल फॉर्म. बेसिक डिटेल्स हैव टू बी फिल्ड. अब आता है फॉर्म 2. फॉर्म 2 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म, बिकॉज जैसे आप कभी अपना इन्वेंशन या आप अपनी रिसर्च को डिफाइन करते हैं तो आप एक रिसर्च पेपर लिखते हैं, उसी तरीके से फॉर्म 2 होता है. आप जैसे आपने इन्वेंशन करा, आपने रिसर्च किया और कुछ प्रोडक्ट आपको मिल गया, उसका थोड़ा बहुत डेटा है आपके पास. तो कम्युनिकेशन और आर्टिकल में क्या डिफरेंस होता है? कम्युनिकेशन होता है विद लिमिटेड डेटा, आर्टिकल होता है विद फुल डेटा. सो सिमिलर टू दैट यू कैन फाइल अ प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन इनिशियली विद फॉर्म 2, जिसमें आप प्रिलिमिनरी डाटा दो, अपना इन्वेंशन डिफाइन करो, उसका टाइटल क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्या है, इन्वेंशन क्या है, जैसे आप रिसर्च पेपर लिखते हो उसका एक PDF बनाओ और वो आप प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन की तरह फॉर्म 2 के साथ अपलोड करो. फॉर्म 2 होता है बेसिकली आपको अपना नाम, एप्लीकेंट का नाम, एड्रेस और ये कंप्लीट जो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन आपने तैयार किया है इसको अपलोड करना होगा. सो दैट इज इट प्रिलिमिनरी स्टेज. फिर आपको 12 महीने का टाइम मिलेगा, आप अपना स्टडी कंप्लीट करिए और कंप्लीट करने के बाद कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करिए विद इन 12 मंथ्स. कंप्लीट डेटा, कंप्लीट एग्जाम्पल्स, कंप्लीट वर्किंग मॉडल विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ प्रोविजनल. ओके, डिफरेंस क्या होता है? प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन में बेसिक डेटा होता है, बेसिक आउटलाइन होता है. कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में कंप्लीट डाटा होगा और क्लेम्स होंगे. अभी मैं आपको बताऊंगी व्हाट आर क्लेम्स. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी पेटेंट एप्लीकेशन का क्लेम, क्योंकि हम लोग क्लेम एग्जामिन करते हैं और क्लेम पे आपको प्रोटेक्शन मिलता है. पेटेंट आपको मिलता है, आपकी प्रोटेक्शन जो आपको मिलती है वो क्लेम्स में मिलती है. देन देयर इज फॉर्म 3. अगर आपने कहीं और भी इंडिया के बाहर
एप्लीकेशन कोई डाली है पेटेंट के लिए तो उसकी डिटेल्स आपको फॉर्म 3 में देना है। अगर नहीं डाला है वेल एंड गुड, आप मेंशन कर दीजिए नॉट एप्लीकेबल। फॉर्म 5 इज डिक्लेरेशन। इसमें आपको देना होगा इन्वेंटर का नाम, इन्वेंटर का एड्रेस और नेशनैलिटी, बस ये 3 चीज़ आपको इन्वेंटर की जो भी डिटेल्स मांगी गई है वो इन्वेंटर की डिटेल्स आपको फॉर्म 5 में देनी है। सिर्फ फॉर्म 1 के साथ आपको फीस सबमिट करनी होती है। देन फॉर्म 2 इज नो फीस अप टू 30 पेजेस एंड 10 क्लेम्स। अगर आप इससे ज़्यादा जाते हैं आगे देन देयर इज अ फीस। देन फॉर्म 3 हैज नो फीस, फॉर्म 5 हैज नो फीस। आपने 1 2 3 5 जमा कर दिया, आपका पेटेंट एप्लीकेशन फाइल हो गया है, यू विल गेट अ एप्लीकेशन नंबर। दिस इज द एंटायर। नाउ फॉर्म 18, जिस दिन आपने फाइल अपनी की है एप्लीकेशन उसके 4 साल तक के आपके पास टाइम है फॉर्म 18 फाइल करने का। फॉर्म 18 होता क्या है? फॉर्म 18 का मतलब है आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी तो उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको एग्जामिन करने के लिए आपको फॉर्म 18 डालना होगा। सो फॉर्म 18 हैज अ फीस एंड इट कैन बी फाइल्ड अप टू 4 years फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द फॉर्म 1। इट इज बेटर टू फाइल फॉर्म 18 विद फॉर्म एट द टाइम ऑफ फाइलिंग, ताकि आपकी एप्लीकेशन जल्दी आगे बढ़ेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ केसेस में फी कंसेशन देती है, जैसे नेचुरल पर्सन यानी हम और आप, या कोई स्टार्टअप है, कोई स्मॉल एंटिटी है या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। तो अगर आपको वो फीस कंसेशन क्लेम करना है तो आप जब भी फाइल करें उसके साथ एक फॉर्म 28 होता है, उसको फिल कर दें। उसमें आप टिक कर दें कि आप कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे दें, जैसे स्टार्टअप का DIPP डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT सर्टिफिकेट देता है स्टार्टअप के लिए, तो वो सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। MSME का सर्टिफिकेट होता है स्मॉल एंटिटी के लिए, वो आप लगा सकते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए UGC का जो भी लेटर आता है एक पर्टिकुलर, वो लेटर ऐड होगा। सो फॉर्म 28 के साथ आपको एक एविडेंस देना होगा कि आपको फी कंसेशन क्लेम करना है, क्योंकि आप स्टार्टअप, स्मॉल एंटिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। सो फॉर्म 28 हैज नो फीस। ये है, मैंने जैसे बताया कि कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्लेम। दिस इज अ सैंपल ऑफ अ क्लेम, जिसमें एक वाटर फिल्ट्रेशन डिवाइस क्लेम की गई है। तो आप कैसे क्लेम ड्राफ्ट करते हैं? सिंपल तरीका होता है, अ वाटर फिल्ट्रेशन डिवाइस, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका नाम वो क्या है। अ वाटर फिल्ट्रेशन डिवाइस कंप्राइजिंग, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। देखिए क्लेम का इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है आपकी इन्वेंशन कैसे काम करती है, क्या काम करती है, वी डोंट वांट। क्लेम में यू हैव टू फोकस ऑन हाउ, नॉट ऑन व्हाट, हाउ योर इन्वेंशन वर्क्स, व्हाट आर द कंपोनेंट्स इन इट। तो यहाँ पे अ वाटर फिल्ट्रेशन डिवाइस कंप्राइजिंग अ वाटर इनलेट, फिल्ट्रेशन यूनिट, वाटर आउटलेट एंड डिफरेंट कंपोनेंट्स। सो द एप्लीकेंट इज डिफाइनिंग हिज इन्वेंशन विद डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो ये होता है क्लेम 1, जो कि ब्रॉडर होता है, मतलब आप आउटर पिक्चर एक बनाते हो। फिर उसके बाद जो डिपेंडेंट क्लेम्स होते हैं लाइक क्लेम 2, 3, 4, दे आर वाटर फिल्ट्रेशन डिवाइस एज क्लेम्ड इन क्लेम 1। अब यहाँ पे आप अपने इन्वेंशन को डिटेल में स्पेसिफिक फीचर्स मेंशन करो कि आपके हर एक पार्ट का स्पेसिफिक फीचर क्या है। तो क्लेम 1 ब्रॉड होता है और डिपेंडेंट क्लेम्स नैरो होते हैं। आपने अगर एक कंपाउंड बनाया तो आप कंपाउंड को क्लेम 1 बना सकते हैं, और वो कंपाउंड को बनाने का जो प्रोसेस है उसको फिर क्लेम 2 बना सकते हैं। तो आप मल्टीपल भी इन्वेंशंस का ले सकते हैं, जैसे कि कंपाउंड और उसका प्रोसेस। अब ये एक प्रोसेस का एग्जांपल है। इसमें देखिए आप मेथड ऑफ एडिंग मिनरल टू अ प्यूरिफाइड वाटर, यानी आप वाटर प्यूरिफाई कर रहे हो और उसमें साथ साथ एडिशनल मिनरल्स भी डाल रहे हो। आजकल इस तरह के भी RO प्यूरिफायर आ रहे हैं जिसमें कहते हैं कि हम वाटर की पौष्टिकता बढ़ाते हैं। सो दिस इज द काइंड ऑफ प्रोसेस। आप बताइए मेथड ऑफ डूइंग समथिंग इंक्लूडिंग कंप्राइजिंग द स्टेप्स, फिर आप स्टेप्स को डिफाइन करिए और फिर उसी तरह से आपको हर स्टेप की डिटेल्स उसके डिपेंडेंट क्लेम में, यानी 2 और 3, 4 अप टू 10 जिस तक फीस नहीं पड़ती है एक्स्ट्रा, आप डिफाइन कर सकते हैं। सो ये मेजर पार्ट होता है आपकी एप्लीकेशन का। हमेशा क्लेम्स ड्राफ्ट करते वक्त फोकस ये रखिए कि आपकी इन्वेंशन काम कैसे करती है, ना कि क्या करती है। ई फाइलिंग जैसे मैंने बताया, ऑनलाइन फाइलिंग अगर करते हैं तो आपको 10% फी डिस्काउंट मिलता है। साइट है ipindia.gov.in। फॉर्म 1 फॉर अ नेचुरल पर्सन, स्टार्टअप, स्मॉल एंटिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए सिर्फ 1600 रुपये है फॉर्म 1 के लिए, और फॉर्म 18 के लिए है 4000, यानी टोटल 5600 में आपका फाइल भी हो जाएगा और आप उसको आगे भी बढ़ा पाएंगे एग्जामिनेशन के लिए। कोशिश करिए फॉर्म 18 जितना जल्दी हो सके फाइल करने का। और अगर
कोई प्राइवेट कंपनी है या इन कैटेगरी से अलग है वो, तो उनके लिए थोड़ी फीस ज़्यादा है। ये कंसेशन सिर्फ लिमिटेड स्टार्टअप, स्मॉल एंटिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए है। बाकी लोगों के लिए फीस होगी फॉर्म 1 के लिए 8,000 और फॉर्म 18 के लिए 20,000, तो 28,000। ऑफलाइन आप मान के चलिए कि ऑफलाइन में यही 10% बढ़ के देना होगा। जब आप आईपी इंडिया की साइट पे जाएंगे www.ipindia.gov.in, तो ये होगा उसका साइट का फ्रंट पेज। इसमें यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव ई फाइलिंग है, उसके नीचे पेटेंट सर्च है, फिर है साइड में आप देखेंगे तो वहाँ पे कॉपीराइट ऑफिस का लिंक है, फिर SICLD है। तो कॉपीराइट ऑफिस पे आप जब क्लिक करेंगे तो कॉपीराइट ऑफिस आपको वहाँ पे कॉपीराइट फाइलिंग के लिए आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट बिकॉज टाइम लिमिटेड है तो मैं पेटेंट पे ही फोकस करूंगी। बट लिंक आपको यहाँ पे सारे फाइलिंग के मिलेंगे, सारे टाइप के IPR आप यहाँ फाइल कर सकते हैं। कॉपीराइट हो गया, SICLD R है, देन कॉम्प्रिहेंसिव ई फाइलिंग। जब आप कॉम्प्रिहेंसिव ई फाइलिंग पे क्लिक करेंगे तो कॉम्प्रिहेंसिव ई फाइलिंग आपको इस पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे आपको पेटेंट के लिए ई फाइलिंग लिंक, ट्रेडमार्क, GI, PCT, इन सारे लिंक आपको ये अवेलेबल होंगे। यहाँ पे पब्लिक सर्च का ऑप्शन भी है। मान लीजिए आप कोई पेटेंट फाइल करना चाह रहे हैं तो उससे बेटर है आप उसको अच्छे से पहले सर्च कर लें, क्योंकि उससे आपको पेटेंट एप्लीकेशन ड्राफ्ट करने में हेल्प मिलेगा। सो हम लोगों का यहाँ पे सर्च ऑप्शन भी है। आप ट्रेडमार्क भी सर्च कर सकते हैं, पेटेंट सर्च कर सकते हैं, कॉपीराइट इस तरह का, GI सर्च कर सकते हैं। अब आप ई पेटेंट पे अगर क्लिक कर रहे हैं, आप पेटेंट फाइल कर रहे हैं, उस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये पेज अपीयर होगा। यहाँ पे आपको ई साइन और डिजिटल साइन, बिकॉज जब भी आप ऑनलाइन कोई भी चीज़ फाइल करेंगे तो उस पर सिग्नेचर चाहिए होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपको एक ई साइन लेने का या डिजिटल सिग्नेचर। आईपी इंडिया की साइट से अगर आप ई साइन पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको 250 रुपीज़ की ही फीस होगी। आपको एक ई साइन मिलेगा जो कि आप 100 बार यूज़ कर सकते हैं विद इन 1 ईयर। सो ओनली 250 रुपीज़ एंड यू विल गेट अ ई सिग्नेचर, ई साइन, सिर्फ आईपी इंडिया की साइट से जाके, जो कि आपको ई मुद्रा से ई साइन दिलवाएगा। आपको वहाँ पे अपना डिटेल डालना है, प्रूफ ID प्रूफ देना है और 250 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट करना है। फिर जब आपको ई साइन मिल जाए आप यहाँ पे रजिस्टर करें, लॉगिन करें और इसके बाद आप फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 5, फॉर्म 18 फिल करें। इंपॉर्टेंट ये है कोई भी फॉर्म आप फिल करें तो ऑब्वियसली पहले सबमिट करने से पहले उसका डाउनलोड या उसका कॉपी जरूर सेव करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका पेटेंट जल्दी प्रोसेस हो, जल्दी से आपको पेटेंट आपका मिल जाए, तो कुछ केसेस में कुछ कैटेगरीज को एक्सपीडाइटेड एग्जामिनेशन का बेनिफिट मिला है। जिसमें ये स्टार्टअप है, स्मॉल एंटिटी है, एप्लीकेंट इज अ फीमेल, जिसमें एप्लीकेंट जो है वो फीमेल होना चाहिए। इन्वेंटर की बात नहीं हो रही है, एप्लीकेंट की बात हो रही है। तो एप्लीकेंट इज फीमेल, और अगर कई सारे एप्लीकेंट हैं तो वो सारे नेचुरल पर्सन होने चाहिए, यानी जैसे हम और आप, और उसमें एक फीमेल एप्लीकेंट है। तो या कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है like University of Lucknow, there is a government institution which is substantially funded by the government, so Department of Government, government company, government ministry, they all get a benefit of this expedite। जब आप पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर लेते हैं, फॉर्म 18 फिल कर देते हैं, देन आपकी एप्लीकेशन एग्जामिन होती है। एग्जामिनेशन में पेटेंट हम लोग फॉर्मेलिटी चेक करते हैं कि सारे फॉर्म्स भरे हैं आपने, सही से भरे हैं या नहीं, और फिर आपकी इन्वेंशन चेक होती है। इन्वेंशन में जो बेसिक पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें 3 कंपोनेंट्स हैं। एक नोवेल्टी, जिसमें अगर आपकी इन्वेंशन पूरा का पूरा किसी एक सिंगल डॉक्यूमेंट में हमें सर्च करते हुए मिल जाता है, दैट इज, उसका मतलब है आपकी इन्वेंशन नोवेल नहीं है। दूसरा क्राइटेरिया है इन्वेंटिव स्टेप। इसका मतलब है अगर हम 3-4 डॉक्यूमेंट एक साथ कंबाइन करें, मान लीजिए आपने कोई प्रोसेस क्लेम किया, उसमें 3 स्टेप है और हमें 3 डॉक्यूमेंट मिलते हैं जिसमें एक स्टेप एक में है, दूसरा स्टेप दूसरे में है, तीसरा स्टेप तीसरे में। दैट मीन्स अगर हम वो तीनों डॉक्यूमेंट कंबाइन करेंगे तो हमें आपका प्रोसेस मिल जाएगा। वो होता है आपका इन्वेंटिव स्टेप लैक करना, कि आपकी कई डॉक्यूमेंट या कई सोर्सेज से आपने अपना डेटा से कंबाइन किया है इन्फॉर्मेशन और एक जगह बना दिया है, आपने कुछ नया नहीं किया है। सो दैट इज इन्वेंटिव स्टेप। तीसरा क्राइटेरिया होता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी, मतलब आपका जो इन्वेंशन है वो इंडस्ट्री में यूज और अप्लाई हो सके, बनाया जा सके। तो 3 क्राइटेरिया हम लोग चेक करते हैं। अगर हमें कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा मिलता है जो आपको नोवेल्टी फिल कर रहा है या आपके इन्वेंटिव स्टेप को मार रहा है, देन भी हम लोग उसकी लिस्ट बना के आपको सेंड करते हैं आपके ईमेल आईडी पे जो आपने फॉर्म 1 में डाला है। तो
तो इम्पॉर्टेंट ये है, जब भी आपको उस तरह का रिस्पॉन्स मिले, यू गेट अ टाइम पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने में आपको रिस्पॉन्स फाइल करना है। सो दीज आर द टाइमलाइंस प्रोविजनल टू कंप्लीट, जैसे मैंने बताया 12 महीने है। फॉर्म 18 डालने का रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन इज 48 मंथ्स। आपको जैसे ही फर्स्ट लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्शन मिलती है, फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट, आपको उसको रिस्पॉन्स करना है और उसको अपलोड करना है अपना रिस्पॉन्स विद इन 6 मंथ। फिर हम लोग वापस से आपकी एप्लीकेशन चेक करेंगे और अगर हमें फिर से कुछ ऑब्जेक्शन होंगे तो इस बार आपको हियरिंग अपॉर्चुनिटी दी जाती है, आपको बुलाया जाता है या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन कि आप अपने इन्वेंशन हमें सामने से समझाएं, और अगर आप समझा दे जाते हैं, आपके पास डेटा है, फैक्ट्स है, तो आपको पेटेंट ग्रांट हो जाता है। और अगर नहीं हम लोगों को समझ में आता है या आपका डेटा उतना रिलेवेंट नहीं लगता है तो वो रिफ्यूज होगा, बट विद प्रॉपर रीजन। फॉर्म 3 की टाइमलाइन है 6 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ फॉर्म 1, या जब भी आपने कहीं फॉरेन फाइलिंग किया है तो आपकी जिम्मेदारी है कि विद इन 6 मंथ हम इंडियन पेटेंट ऑफिस को इन्फॉर्म करिए कि आपने कहीं बाहर एप्लीकेशन फाइल की है, अगर वो इंडिया में भी फाइल किया हुआ है तो। फॉर्म 5 का 1 मंथ का टाइमलाइन है फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। उसी तरह से विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन, कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने फाइल कर दिया, 18 महीने पर वो एप्लीकेशन पब्लिश किया जाता है, ठीक है। पेटेंट ऑफिस हर पेटेंट एप्लीकेशन को 18 महीने कंप्लीट होने पे पब्लिश करता है, ताकि कोई भी गवर्नमेंट ऑफ या कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी, कोई भी इंडिविजुअल अगर उसको ये लगता है कि ये पेटेंट ग्रांट नहीं होना चाहिए, तो वो पेटेंट ऑफिस के पास आके रिस्पॉन्ड कर सकता है कि ये पेटेंट एप्लीकेशन ग्रांट नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये प्रूफ है जिसकी वजह से ग्रांट नहीं हो सकता, तो वो हम कंसिडर करते हैं। तो 18 महीने का पब्लिकेशन होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इन्वेंशन पब्लिश ना हो, तो आप 15 महीने में अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ भी कर सकते हैं, ताकि आपकी एप्लीकेशन को पब्लिश नहीं किया जाएगी, आपकी इन्वेंशन सीक्रेट ही रहेगी। हियरिंग सबमिशन, जब आपको हियरिंग अपॉर्चुनिटी दी जाए तो उसके 15 दिन में आपको सारे डेटा और फैक्ट सबमिट करने हैं। प्री ग्रांट एंड पोस्ट ग्रांट, प्री ग्रांट और पोस्ट ग्रांट होता है जब कोई एप्लीकेशन ग्रांटेबल नहीं है या गलत पेटेंट ग्रांट हो गया है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको अपोज कर सकें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप इंडियन रेसिडेंट हैं, आप इंडिया में रह रहे हैं, यू कैन नॉट फाइल एन एप्लीकेशन आउटसाइड इंडिया विदाउट प्रायर परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो देर आर 2 वेज। अगर आपको कोई इन्वेंशन है और आपको बाहर फाइल करना है, इंडिया में पेटेंट नहीं चाहिए आपको, तो एक फॉर्म 25 होता है जो आपको पेटेंट ऑफिस में सबमिट करना होगा और आपको वेट करना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको परमिशन दे बाहर फाइल करने की। ये इसलिए किया जाता है कंसिडरिंग द सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑफ द कंट्री। दूसरा तरीका होता है, पहला हो गया फॉर्म 25 आप फिल करें। दूसरा तरीका होता है कि आप पहले इंडिया में ही एप्लीकेशन फाइल कर दें। 6 हफ्ते तक आपको वेट करना होगा कि अगर आपकी इन्वेंशन कोई सीक्रेसी डायरेक्शन है, वो इंडियन सेफ्टी, सिक्योरिटी या डिफेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, और उस तरह का कुछ अगर नोटिस आ जाता है तो आप बाहर नहीं फाइल कर सकते। और अगर नोटिस 6 हफ्ते तक नहीं आता है, देन यू आर फ्री टू गो एंड फाइल योर एप्लीकेशन इन एनी कंट्री। पीसीटी, पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी। देखिए, आपको अगर कई बार इन्वेंशन होता है कि इंडिया में ही फाइल करना है, ठीक है, इंडियन पेटेंट मिल गया, बट कई बार एप्लीकेशन ऐसी होती है जिसमें आपको पता है कि बाहर की मार्केट में भी उसका पोटेंशियल है, तो आप पीसीटी में डालते हैं। पीसीटी होता है एक इंटरनेशनल पेटेंट फाइलिंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप इंडिया में एप्लीकेशन फाइल करें, 12 महीने के अंदर आप पीसीटी डालें एप्लीकेशन, और फिर वहाँ से आप डिफरेंट कंट्रीज में फाइलिंग कर सकते हैं। बट इसका ये गारंटी नहीं होता है कि आपको हर कंट्री में मिल जाएगा पेटेंट, बट ये है कि पीसीटी में जाने से आपको प्रोसेसिंग फास्टर होगा, क्योंकि पीसीटी सारे देशों में आपका पेटेंट एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देगी। सो इट इज़, और आपको ज़्यादा टाइम लिमिट मिलता है। सो पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी इज रेगुलेटेड बाय वाइपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। पीसीटी का बेनिफिट ये होता है, आपको टाइमलाइन बढ़ जाता है। अगर आप विदाउट पीसीटी इंडिया में फाइल करते हैं एप्लीकेशन और आपको यूएस में फाइल करना है, तो इंडिया में फाइल करने के 12 महीने के अंदर आपको यूएस में प्रोसेस स्टार्ट करना होगा। चलिए, एक कंट्री में तो इंसान कर सकता है, आपको 2-3 कंट्रीज में अगर करना है 12 महीने में, इट इज़ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। पीसीटी में क्या होगा, आप इंडिया में फाइल करिए, 12 महीने के अंदर आप पीसीटी में फाइल कर दीजिए सेम एप्लीकेशन, और आपको 30 से 31 महीने का टाइम मिलेगा अलग अलग कंट्रीज में फाइलिंग स्टार्ट करने का। सो
सो टाइम लाइन आपका बढ़ जाता है। पीसीटी में भी सेम डॉक्यूमेंट होते हैं, वहाँ पे आपको एक प्रिंसिपल फॉर्म RO101 देना होगा, जिसमें आपको जैसे फॉर्म 1 होता है इंडिया का, उसमें आपको आपकी डिटेल, इन्वेंशन की डिटेल, एप्लीकेंट नेम, इन्वेंटर नेम, ये सब देना होगा, एड्रेस कहाँ का है। फिर आपको अपना जैसे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन होता है जिसमें आप अपनी इन्वेंशन डिफाइन करते हैं, उसी तरह से डिस्क्रिप्शन, क्लेम, ड्राइंग, एब्स्ट्रैक्ट, ये आपको पहले से बना के अपलोड करना होगा। देन पावर ऑफ अथॉरिटी, मान लीजिए कोई और आपकी जगह एप्लीकेशन फाइल कर रहा है, आपने कोई पेटेंट एजेंट हायर किया है, तो उसको आपको पावर ऑफ अथॉरिटी देनी होगी। प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट, आपने जो इंडिया में एप्लीकेशन पहले फाइल की है उसके डिटेल्स आपको प्रायोरिटी में डालने होंगे, एंड देन यू हैव टू गिव द फीस। देयर इज इलेक्ट्रॉनिक पीसीटी, जैसे आईपी इंडिया की साइट पे मैंने देखा, आईपी इंडिया की साइट पे आपको ई-पीसीटी का ऑप्शन है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप पीसीटी फाइलिंग कर सकते हैं। ये एक जिस्ट में है जो भी मैंने अभी इंफॉर्मेशन दिया है कि टाइमलाइन, हर एक आईपीआर का एक पर्टिकुलर टाइमलाइन होता है। पेटेंट का 20 इयर्स है, डिजाइन का 10+5, ट्रेडमार्क इंडेफिनेटली, आप ट्रेडमार्क पहले आपको 10 साल के लिए मिलेगा, जो कि आप हमेशा उसको 10 इयर्स के लिए बढ़ा सकते हैं। देन जीआई भी इंडेफिनेटली मिलता है, बट बिगनिंग में 10 इयर्स के लिए। दीज आर द सर्टेन पॉइंट्स जो मैंने अभी डिस्कस करे हुए हैं कि आप अगर इम्पॉर्टेंट इसमें एक चीज़ है कि हमेशा जब भी आप कोई नया इन्वेंशन करते हैं, कुछ नया बनाते हैं, पहले उसका प्रोटेक्शन कराएं, तभी उसको पब्लिश करें, मार्केट में निकालें। दूसरा इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट होता है कि अगर कोई और इंसान आपकी इन्वेंशन या आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा है आपकी परमिशन के बिना, तो ये आपका इनिशिएटिव होना चाहिए कि उसको रोकने के लिए आपको इन्फ्रिंजमेंट सूट फाइल करना है, आपको प्रूफ देना है, तब उसके बाद गवर्नमेंट या कोर्ट उसका एक्शन लेता है। सो गवर्नमेंट नहीं आता है आपको प्रोटेक्शन देने, बट यू हैव टू आस्क फॉर द प्रोटेक्शन। देन देयर आर सर्टेन करियर अपॉर्चुनिटीज एज वेल, बिकॉज अगर जैसे पेटेंट ऑफिस या डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड और एक वैकेंसीज निकालता है, देन यू कैन फिल दोज वैकेंसीज फॉर एग्जामिनर ऑफ पेटेंट डिजाइन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। ये गवर्नमेंट पोस्ट है, परमानेंट है, जिसमें आप फाइल अपनी एप्लीकेशन डालें, एग्जामिनेशन दें और क्वालिफाई करने पे यू कैन गेट अ गवर्नमेंट जॉब। देन रिसर्च एसोसिएट एंड यंग प्रोफेशनल्स, ये सारी भी पोस्ट अभी निकाली गई हैं, जिसमें कि आपको रिसर्च अपॉर्चुनिटी दी जाती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में वाइल वर्किंग इन द पेटेंट ऑफिस। अपार्ट फ्रॉम देयर पेटेंट एजेंट का भी बहुत एक लुक्रेटिव करियर है। पेटेंट एजेंट में आपको एक एग्जामिनेशन, अगर आप टेक्निकल फील्ड है, आपकी मास्टर्स है आपका, तो आपको टेक्निकल फील्ड में पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन आप भर सकते हैं। पेटेंट एजेंट इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है कि कोई भी फॉरेन एप्लीकेंट, अगर कोई बाहर का देश इंडिया में पेटेंट फाइल, बाहर का एप्लीकेंट इंडिया में पेटेंट फाइल करना चाहता है, पेटेंट ऑफिस कभी भी फॉरेन एड्रेस पे कम्युनिकेशन नहीं करता। अगर हम कुछ भी कम्युनिकेशन करेंगे तो सिर्फ इंडियन एड्रेस पे, तो वो इंडियन एड्रेस लेने के लिए पेटेंट एजेंट को फॉरेन कंपनीज हायर करती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। जो पेटेंट एजेंट सारा का सारा पेटेंट ऑफिस का जितनी भी प्रोसेसिंग होगी वो आपके बिहाफ पे वो करेगा, आपको वो विद सर्टेन अमाउंट ऑफ फीस ऑब्वियसली। देन यू कैन बी अ ट्रेडमार्क एजेंट। देन देयर आर पेटेंट फैसिलिटेशन सेंटर्स which are more and more facilitation centers are being opened in the country, and you can be hired there as the research associate or research fellow. Then also as I have said कि कोई भी कंपनी जब कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसके पहले बहुत सारा उसका पेटेंट या उसका IPR प्रोटेक्शन होता है, तो वो एक पूरी टीम हायर करती है। हर एक मल्टीनेशनल कंपनी, चाहे महिंद्रा हो, चाहे टाटा, बिरला, अंबानी, दे ऑल हैव, रिलायंस, एवरीवन, दे ऑल हैव देयर IT सेल। तो वहाँ पे वो हायर करती है मैन पावर जिनका IP का एक्सपीरियंस होता है, ताकि वो उनकी जो IPR है उसको रेगुलेट करें, उनको मैनेज करें। तो अगर आपका IP में एक्सपीरियंस है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की डिग्री है, डिप्लोमा है, एक्सपीरियंस है, देन यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू बी हायर्ड बाय दोज MNCs। फर्दर ट्रेनिंग RG and IPM है, गवर्नमेंट बॉडी है, इंस्टीट्यूट है इन नागपुर, जहाँ पे आपको फर्दर IP से ट्रेनिंग अगर आपको चाहिए देन वी गेट दैट। थैंक यू। The main site, one more thing, IP India का जो मेन साइट है www.ipindia.gov.in, अगर आप हाफ एन आवर टू 1 आवर उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे देन यू विल नो दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ IP। वो आपको हेल्प करेगा अपने करियर में आगे। अगर आप स्टार्टअप खोलना चाहते हैं या आप रिसर्चर हैं तो आप कैसे अपने IP को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसका अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो वहाँ पे काफ़ी कंटेंट अवेलेबल है उससे रिलेटेड। एंड अगर
अगर कभी जॉब या इस तरह का रिक्रूटमेंट नोटिस आता है तो वो भी वहाँ पे मेंशन होता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू.